اگلی بات سنے گا. اگلی اہم بات یہ ہے کہ the Trump administration is escalating military pressure on Venezuela, signaling a potential move towards regime change. In a major show of force this week, 3 US bombers flew orbits in the international airspace of the Venezuelan coast. اب وینیزویلا کی کوسٹ کے پاس جو ہے وہ 3 B-52 بامبرز جو ہیں وہ اس کی ایئر اسپیس کے پاس سے گزرے، اور اس کے جواب میں وینیزویلا نے اپنا ایک F-16 جو ہے وہ اسکریمبل کیا، لیکن اس کو دیکھ کر جو ہے وہ واپس چلے گئے. بٹ وی آل نو دیٹ کہ وہ F-16 جو ہے وہ اتنا کیپیبل تو نہیں تھا. اگر B-52 بامبرز چاہتے تو وہ اٹیک بھی کر سکتے تھے. بیسکلی یہ جو مووز امریکہ کھیل رہا ہے، یہ گیم امریکہ کھیل رہا ہے، یہ بیسکلی امریکہ پریشر میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وینیزویلا کی رجیم کو، تاکہ وہ ساری کی ساری باتیں مان لیں جو امریکہ چاہتا ہے. اور امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ نکولس مدورو صاحب کو فارغ کرنا چاہتا ہے. اگلی بات سنے گا. اگلی اہم بات یہ کہ جو 3 B-52 بامبرز تھے، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا کوڈ نیم ہے بنی 1، بنی 2 اینڈ بنی 3. بنی 1، بنی 2 اور بنی 3 یہ 3 ان کا بیسکلی کوڈ نیم ہے. اصل میں تو ان کا نام کچھ اور ہوگا، بٹ بنی 1 ایک 52 بامبر ہے، اور بنی 2 اور بنی 3 یہ 3 B-52 بامبر جو تھے یہ بیسکلی گزرے ہیں، اور یہ پھر 2 دن بعد واپس جا چکے ہیں. اب وینیزویلا کی طرف سے جو ملیٹریلی کیا رسپانس کیا جا رہا ہے؟ وینیزویلا نے 2 کام کیے ہیں پچھلے تقریباً 1 مہینے میں. پہلا کام وینیزویلا نے یہ کیا کہ جو گوانا والا بارڈر تھا، اس بارڈر پہ اس نے اپنے ملٹری ڈیفینسز کو اسٹرانگ کر لیا. میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں. دیر وی گو اگین. وینیزویلا نے کیا کیا؟ وینیزویلا نے یہ کیا کہ وینیزویلا نے جو یہ والا بارڈر آپ دیکھ رہے ہیں وینیزویلا کا گوانا کے ساتھ، بارڈر کا جو یہ والا علاقہ ہے سارا، یہ والا جو سارا علاقہ ہے، اس سارے علاقے پر وینیزویلا نے اپنے جو ملٹری ڈیفینسز ہیں ان کو اسٹرانگ کر لیا. ان سارے علاقوں پر، ان سارے علاقوں میں ملٹری ڈیفینسز کو اسٹرانگ کر لیا. اور دوسری بات یہ کہ وینیزویلا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ملٹری کو کولمبیا کے جو کولمبیا اور وینیزویلا کا یہ جو بارڈر ہے، اس بارڈر پر بھی اپنی ملٹری کو کی موومنٹ بڑھا دے گا. اب وینیزویلا کو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں کولمبیا سے کوئی اٹیک نہ ہو جائے، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے امریکہ کولمبیا کی ایئر اسپیس وائلیٹ کر کے یہاں سے اٹیک کر دے، کیونکہ امریکہ کے کئی فائٹر جیٹس تو ڈیٹیکٹیبل آج بھی نہیں ہے نا. F-35 کو ڈیٹیکٹ کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے، بٹ اسٹل یہ رسکی ہے F-35 کے لیے، تو یہ موو مشکل ہے. بٹ امریکہ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں آپ کو ایک اور میپ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو. یہ دوسرا میپ ہے، یہ دیکھیے گا. اب اس ٹائم امریکہ کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ وینیزویلا نے جو کولمبیا والا بارڈر ہے اس پہ اپنی ملٹری کو بٹھا دیے زیادہ، اپنی ملٹری کی جو نفری ہے وہ زیادہ بڑھا دی ہے اس جگہ پہ. اور جو یہ والا علاقہ ہے جو گوانا کے ساتھ لگتا ہے، یہاں پر اس نے وینیزویلا نے اپنے ایئر ڈیفینس سسٹمز بھی بڑھا دیے. اور اوبیسلی سامنے سے تو وہ دیکھ ہی رہے، سامنے سے وہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ اگر اس پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچائے اور اس اٹیک کو وہ مانیٹر کرے. بٹ اسٹل امریکہ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اسٹیلتھ ہے، اس کو پکڑنا اتنا آسان تو نہیں ہے. بٹ اسٹل یو اسٹل ہیو سم کائنڈ آف چانس کہ اگر آپ کے پاس کچھ ریڈار میں کچھ آ جائے اور آپ آلریڈی پہلے سے الرٹ ہیں تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ سکیں. اگلی بات سنے گا. اب اگلی اہم امپورٹنٹ بات یہ کہ وینیزویلن پریزیڈنٹ نکولس مدورو ordered the militarization of border crossings with Colombia due to growing tensions of a land invasion by United States. اچھا، اب وینیزویلا کے اندر ایک اور ڈر پایا جا رہا ہے کہ امریکہ لینڈ انویژن کرے گا، which is not possible. کیونکہ دیکھیں امریکہ فی الحال لینڈ انویژن کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ اگر امریکہ نے ایک دفعہ لینڈ انویژن کر دی وینیزویلا میں تو پھر وینیزویلا میں سول وار ہونے کا خطرہ ہے، اور جو اگلے 10 سال امریکہ اسی سول وار میں پھنسا رہے گا. واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کیونکہ امریکہ فی الحال چائنا اور رشیا کو نیٹو میں معاملے میں دیکھ رہا ہے، اور چائنا کو تائیوان والے معاملے میں دیکھ رہا ہے، ساؤتھ چائنا سی میں. تو امریکہ فی الحال کسی اور جنگ میں داخل نہیں ہوگا. بٹ رائٹ ناؤ تھنگ از دیٹ کہ امریکہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے رجیم چینج کرے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے وائٹ ہاؤس میں، اس میں کوئی ڈھگی چوبی بات نہیں ہے. جو ڈیفینس سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو ہوں وہ بڑے سخت ہیں. ڈفرینٹ سورسز نے یہ بتایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ مارکو روبیو چاہتے ہیں کہ وینیزویلا کی حکومت چینج ہو. تو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب فیصلہ کر چکی ہے کہ وینیزویلا کی حکومت کو چینج کرنا ہی ہے، بائی ہک اور بائی کک. یا تو ان کو بھیج دیا جائے واپس رشیا بھیج دیا جائے، جس طرح بشار الاسد صاحب پچھلے دسمبر میں اڑ کر گئے رشیا اور نئی حکومت آ گئی سیریا میں، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. یا تو پھر ان کو فارغ کر دیا جائے، ان کو اسٹرائک کرا کے مروا دیا جائے تاکہ ایسے پرسن کو اسٹیبلش کیا جائے جو ان کی مرضی کا ہو. اب بات اس ٹائم یہ کہ کون کون سے لوگ اس ٹائم وینیزویلا میں ان کی مرضی کے ہو سکتے ہیں. وینیزویلا میں 2 لوگ ہیں جو اس ٹائم امریکہ کی مرضی کے مطابق چل سکتے ہیں. پہلے جو ہیں وہ مس ماریا ہیں. مس ماریا کو ریسنٹلی ابھی وینیزویلا کی جو ہے ان کو نوبل پیس پرائز ملا ہے. اور ایک ہے نواک گوائیڈو. نواک گوائیڈو یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے 2019 میں بھی ایک کوپ کرنے کی کوشش کی تھی جو نکولس مدورو کے خلاف، جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی. لیکن انفارچونیٹلی فار امریکہ
अनफॉर्चुनेटली फॉर अमेरिका वो कूप कामयाब नहीं हुआ था और निकोलस मदुरो सर्वाइव कर गए थे। लेकिन अब इस टाइम ये कहा जा रहा है कि अगर ये कूप या जो भी जेन जी का प्रोटेस्ट या जो भी चीज़ अमेरिका करवाना चाह रहा है वो कामयाब होगी, तो या तो मिस मारिया गवर्नमेंट में आएंगी वेनेजुएला में, क्राकस में बैठेंगी, या तो फिर नोवाक ग्वाइडो होंगे। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेहतरीन पर्सन है, तो आई थिंक नोवाक ग्वाइडो विल बी द बेस्ट चॉइस, क्योंकि नोवाक ग्वाइडो इज़ वेरी प्रो अमेरिका और वो अमेरिका की बात को मानते हैं। मिस मारिया जो है शी इज़ नॉट वेरी मच प्रो अमेरिका, वो बड़ी नेशनलिस्ट हैं। हालांकि वो उस टाइम निकोलस मदुरो के ख़िलाफ़ हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो निकोलस मदुरो के ख़िलाफ़ हैं, बट जो पॉलिसीज़ मैंने पढ़ी हैं मिस मारिया की, तो वो बड़ी प्रो नेशनलिस्ट हैं और वो अमेरिका की सारी बातें नहीं मानेंगी। तो आई थिंक द बेस्ट चॉइस विल बी, अगर अमेरिका के परस्पेक्टिव से पूछते हैं, अगर बेस्ट चॉइस आपने इंस्टॉल करनी है तो जो नोवाक ग्वाइडो साहब हैं, ही इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर अमेरिका, जो उनकी चीज़ को मानेंगे और फिर इवेंचुअली जो है वो इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। बट स्टिल ये बहुत सारी चीज़ें कबल अज़ वक्त हैं, क्योंकि निकोलस मदुरो साहब भी बड़े समझदार आदमी हैं। उन्होंने भी ऑफ़र किया है वेनेजुएला का ऑयल, वेनेजुएला का गोल्ड या वेनेजुएला के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक बिजनेसमैन भी हैं, उनके बहुत सारे बिजनेस भी हैं, तो उनको एक तरह से लालच देने की कोशिश की है कि वो उनको बचा लें। बट आई डोंट थिंक सो कि उनकी बचत का टाइम आ गया। आई थिंक उनके फारिग होने का वक्त आ चुका है और अमेरिका ये अब डिसाइड कर चुका है। अच्छा, अब हम रीजनल एस्केलेशन की तरफ जाते हैं कि सारे मामले का मौका क्या है। देखिए, अगर हम इस सारे मामले को ब्रॉडली देखते हैं तो अमेरिका एक पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका को ये मैसेज देना चाहता है कि सुन लो खुल के कि अगर मेरे ख़िलाफ़ तुमने कोई काम किया, अगर तुमने ब्राज़ील ने, कोलंबिया ने या वेनेजुएला ने मेरे ख़िलाफ़ कोई बात साजिश करने की कोशिश की, चाइना को तुमने बिठाया लैटिन अमेरिका में, रशिया को लैटिन अमेरिका में बिठाया, तो मैं तुम सब लोगों को सीधा कर दूंगा और मैं तुम सब लोगों को फारिग कर दूंगा। तो बेसिकली ये लूला डी सिल्वा जो प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के, उनके लिए, निकोलस मदुरो के लिए तो है ही, रॉड्रिगो जो प्रेसिडेंट है इस टाइम कोलंबिया के लिए, इन तीनों ट्रायोका, इन तीनों जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट लेके अपनी पब्लिक में जाते हैं, इन तीनों प्रेसिडेंट के लिए मैसेज है और पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका के लिए मैसेज है कि यहाँ पर रशिया नहीं आएगा, यहाँ पर चाइना नहीं आएगा। अगर चाइना और रशिया आएंगे तो ऑब्वियसली अमेरिका रिएक्ट करेगा और अमेरिका का रिएक्शन आपने देख लिया, बहुत सख्त रिएक्शन है। दूसरी बात ये, अमेरिका ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ जो है वो डिपार्टमेंट जो अमेरिका का डिफेंस है उसको अमेरिका ने नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। इसका मतलब है अमेरिका एक वॉर, अमेरिका का जो मिलिट्री पॉस्चर है वो अब चेंज हो चुका है। इसका मिलिट्री पॉस्चर का मतलब होता है कि जो पॉलिसीज़ हैं, जो अमेरिका के एक्शंस हैं, वो हमें अब चेंज होते हुए नजर आएंगे, जो हमने अभी देखे हैं दुनिया में। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आने वाले टाइम पे अमेरिका इन सब कंट्री से प्रेशर डालेगा, खासतौर पे अपने बाजू में जो बैक यार्ड है इस टाइम। दैट्स हाउ इट इज़। अगली बात सुनिएगा, अगली इस टाइम बात यह है कि डोमेस्टिक प्रेशर जो है वो मडूरो पे बढ़ रहा है। डोमेस्टिक प्रेशर मदुरो पे इसलिए बढ़ रहा है कि एक तो मदुरो के अपने जो एलाइज हैं वो कहीं ना कहीं मदुरो के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, पहली बात तो ये। सेकंड थिंग इज़ दैट जो पब्लिक है, पब्लिक की तरफ से भी प्रेशर आ सकता है। जो जेन जी की मैंने बात की है कि जेन जी कोई प्रोटेस्ट इरप्ट करके कोई इस तरह का काम कर सकता है जिससे जो है वो कोई ऐसा मामला जो है वो सामने आए जिससे जो है वो निकोलस मदुरो साहब की हुकूमत फारिग हो जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि अभी फ़िलहाल हमें डिप्लोमेसी किसी तरह से नज़र नहीं आ रही। निकोलस मदुरो साहब ने कतर से रिक्वेस्ट की कि कतर जो है वो मीडिएशन करवाए अमेरिका और वेनेजुएला की। कतर ये कोशिश कर रहा है, बट अमेरिका की जानिब से मैसेज आया जब कतर ने अप्रोच किया अमेरिका को, कतर ने ये कहा कि नहीं, हम जो है वो कतर को अमेरिका ने कहा कि हम फ़िलहाल किसी मूड में नहीं है, हमने रिजीम ही चेंज करवानी है। और ये बात आप समझ लीजिएगा, अभी 6 महीने बाद या 1 साल बाद ट्रम्प साहब जो है वो अब पीछे पड़ चुके हैं इस चीज़ के, वो रिजीम चेंज करा के ही रहेंगे। मदुरो साहब का जो है वो टाइम अब आ चुका है। अगली बात सुनेगा, अगली इस टाइम बात ये है कि अब इस सारे मामले में इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन का इशू होगा। देखिए, बात इस टाइम ये है, अमेरिका पे दर पे उन सारी की सारी जो बोट्स हैं जो इलीगली इमिग्रेंट्स को लेकर जाती हैं या हेरोइन लेके जाती हैं या डिफरेंट ड्रग्स लेकर जाती हैं अमेरिका में, अमेरिका ने उनके खिलाफ सख्त क्रैक डाउन किया हुआ है। कल भी अमेरिका ने एक सब अब जो है जो पानी के नीचे चलती है उसको अटैक किया, 2 लोगों ने सर्वाइव किया, आज उनको रिपैट्रिएट कर दिया गया। 2 दिन पहले अमेरिका ने एक और बोट पे अटैक किया, कई लोग मर रहे हैं। डेमोक्रेट्स बात कर रहे हैं, बट अमेरिका ये कह रहा है कि उसके नेशनल इंटरेस्ट में है, और जो बात अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में होती है फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, उस चीज़ को जो है वो करेक्ट कर दिया जाता है। पहली बात तो ये। सेकंड थिंग इज़ दैट अमेरिका बार बार जो है वो उस चीज़ को बताने की, पावर करवाने की कोशिश कर रहा है दुनिया को कि वो एक हार्ड पावर है। हार्ड पावर का मतलब ये होता है कि आप पर अगर कोई अटैक करेगा तो आप उसको डबल अटैक करेंगे, आप उसको डबल डाउन करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि अमेरिका का जो पॉस्चर है मिलिट्री का वो अब एग्रेसिव हो गया है और हर उस नेशन के खिलाफ वो एग्रेसिव रहेगा जो न्यूक्लियर पावर नहीं है और अमेरिका के खिलाफ है। ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया के खिलाफ तो अमेरिका कोई एक्शन ले नहीं सकता, बट उन कंट्रीज़ के खिलाफ तो ले सकता है जो अमेरिका के खिलाफ हैं और
हार्ड पावर के थ्रू अमेरिका उनके खिलाफ एक्शन लेगा। ईरान की मिसाल आपके सामने है और वेनेजुएला को भी हम इस चीज़ में देख रहे हैं। तो ये सारा मामला हमें एक ग्लोबल एक नई डायनामिक्स की तरफ लेकर जा रहा है, जहाँ पे अमेरिका सख्त नाराज़ है उन सारे मुल्कों से जो अपना पूरी तरह जो टिल्ट है वो चाइना और रशिया की तरफ कर रहे हैं, जो 50-50 नहीं खेले, जो बैलेंसिंग नहीं करे, उससे अमेरिका बहुत सख्त नाराज़ है। और फिर हमने ये देख लिया कि अमेरिका की जो वैथ है वो इन सारे कंट्रीज़ की तरफ जो है वो आने वाले टाइम पे हमें और ज़्यादा नज़र आएगी। और थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द अपकमिंग डेज, बट दैट्स हाउ इट इज़। अभी तक जो हमारे पास सिचुएशन है वेनेजुएला की तरफ से, और वो ये है कि एज ऑफ नाउ अमेरिका का जो मिलिट्री बिल्डअप है वो पिछले एक महीने से 4,500 मैरीन से बढ़कर 10,000 मैरीन्स हो चुका है। अमेरिका के इस टाइम 8 जो सब मैरीन 8 इस टाइम अमेरिका के नेवल वॉरशिप रीजन में मौजूद हैं। एक न्यूक्लियर सब मैरीन है, 3 B-52 बॉम्बर्स हैं और 10 F-35 फाइटर जेट्स हैं। इतनी बड़ी फौज के साथ अमेरिका फ़िलहाल इन्वेजन तो नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली वो एक प्रेशर डाल सकता है जिससे निकोलस मदुरो या उनकी रिजीम में किसी न किसी तरीके से हमें कोई चेंज नज़र आए। और ये ऐसा लगता है कि अमेरिका मूड में आ चुका है कि वो लैटिन अमेरिका में जो भी कंट्री उसके ख़िलाफ़ बात करेगा वो निकोलस मदुरो को फारिग करने के बाद बाकी कंट्रीज़ को भी एक मैसेज देंगे कि तुम सब सीधे हो जाओ वरना मैं तुम सबको देख लूँगा। आप लोगों के कोई सवालात हैं तो आप लोग कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर लाइव हूँ आपके सवालात के जवाब देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच अगेन फॉर द मैसेज। नफसा कैसे हैं आप? ठीक हैं ब्रदर। गेमिंग बहुत शुक्रिया मैसेज का। रामन कह रहे हैं कि सर ये सब क्यों कर रहे हैं वेनेजुएला के साथ? ब्रदर रामन भाई ये तो पावर प्ले है। जब भी कोई ताकतवर कंट्री देखता है कि कमज़ोर मुल्क उसके खिलाफ आंखें उठाकर देख रहा है तो अंकल सैम आपको पता छोड़ते किसी को नहीं है, इसलिए अमेरिका को अंकल सैम कहते हैं। उमर कह रहे हैं कि सर ये बताइए हाउ डज KSA डज देयर आइज क्लोज एज पर मल्टीपल सोर्सेज KSA एंड वेनेजुएला हैव ह्यूज ऑयल रिजर्व्स व्हाट हैड केप्ट द सऊदीज फ्रॉम स्पीकिंग अगेंस्ट US? बिकॉज अगर अमेरिका के खिलाफ बात करेंगे तो फिर ये आले सऊद तो नहीं रहेगी ना। 3 मंथ्स कह रहे हैं कि मोदी एंड ट्रम्प सिचुएशन एक्सप्लेन करें। आई थिंक मोदी और ट्रम्प साहब के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी हमें आती हुई नज़र आ रही है। सुबान भाई कह रहे हैं मेरा सवाल है कि मेरे क्या सुबान भाई थैंक यू सो मच अगेन। मैं समझा नहीं आपकी बात क्या कह रहे हैं। एनीवेज आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं 2-3 मिनट में लाइव हूँ। उसके बाद एक और टॉपिक पर लेकर हमने बात करनी है। पीरो में इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देखना ये कि पीरो में प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, बट फिलहाल आई एम लाइव। मैं ऊपर से भी कमेंट्स पढ़ता हूँ सारे, क्योंकि आज उमर भाई थैंक यू सो मच अगेन। अंजीन कैसी हैं आप? ठीक हैं। माइक इज़ वेरी गुड, थैंक यू सो मच उमर भाई। सर व्हाट डज सरप्राइजिंग इज़ वाई ट्राई टू वायलेट क्यूबन एयर स्पेस? इट इज़ टू शो हुज बॉस द फाइट फ्लैग